So let's begin our today's session without wasting any time. And here's our first question. Consider the following statement on India-China boundary talks. पहला statement क्या है? The special representative SR and talks and the WMCC are two separate mechanisms. So यहाँ पे WMCC का full form क्या हो जाएगा? Working mechanism for consultation and coordination. Okay. So हो गया पहला स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट हमारा है द 2005 agreement on political parameters and guiding principles concluded the first of a three-stage boundary settlement process. And the third statement says delimitation and demarcation of the boundary on maps and grounds forms the second stage of the process. हमें बताना है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो पॉज and think and then answer the question. Eliminate rationally, don't just hurry. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जिसमें कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत है. अब पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि ये आर्टिकल जो अभी रिसेंटली 6 अगस्त को WMCC का मीटिंग हुआ था ऑन बॉर्डर अफेयर्स फ्रॉम दिस सेपरेट 25th राउंड ऑफ एसआर टॉक्स ऑन दी बाउंड्री क्वेश्चंस. ठीक है, तो WMCC एंड एसआर टॉक्स जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स होते हैं ये दोनों सेपरेट है. ओके, दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट सेम और सिमिलर, राइट. सो इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि एक्सप्लिसिटली 2005 का अग्रीमेंट में ये मार्क करा गया था कि द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द थ्री स्टेज प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है, राइट. एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन फॉर्म्स द फाइनल एंड द थर्ड स्टेज ऑफ द प्रोसेस, नॉट द सेकंड स्टेज. दैट्स व्हाई आवर थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, right. And the confusing point was here that WMCC and SR political talks, do not confuse among these two, that they are similar or some kind of things. They are distinct and they are different from each other. Okay. So our next question is, consider the following statement regarding Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2026. पहला statement है, the acts bring mineral bearing land, not just mines, under union regulatory control. Second है, under section 9D, states cannot collect mineral related taxes cess even if due through pending court orders. और तीसरा statement कह रहा है, Odisha accounted for the largest share 43.49% of India's mineral production value in 24-25. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कितने स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा. So the answer for this question will be option C, यानी all three statements are correct. So अभी recently the mineral bearing states जैसे कि झारखंड and all are protesting the mines and mineral development. अभी जो बिल पास लाया गया है पार्लियामेंट में, वो बिल के थ्रू क्या करा जा रहा है, it will restrict the rights of states. Okay, so that's why the concerned states are protesting against the bill. और इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही हो जाता है क्योंकि सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट क्या बोलता है इसमें कि मिनरल बेरिंग लैंड जो है अलॉन्ग साइड माइंस एक्सपेंडिंग यूनियन कंट्रोल बियॉन्ड जस्ट माइनिंग साइट्स इनटू सराउंडिंग लैंड. ओके, सो यूनियन का कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द स्टेट्स एंड दैट्स व्हाई द स्टेट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बिल. सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है. अब ये बिल का जो सेक्शन 9D है इसमें एक्सप्लिसिटली ये मेंशन करा गया है कि स्टेट्स विल स्टॉप रिसीविंग मिनरल टैक्सेस इवन दो कोर्ट ऑर्डर्स ड्यू. ओके, जैसे कि अभी ओडिशा के केस में ओडिशा स्टूड टू लूज ओवर 1 लाख करोड़ इन रेट्रोस्पेक्टिव क्लेम्स के तहत उड़ीसा का भी 1 लाख करोड़ का लॉस होगा. ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि अभी उड़ीसा ने हाईएस्ट देखा with a value of 43.49% of national mineral production value. Okay, and that's all the three statements are correct here. Now moving on to the next one, assertion and reason questions है. चलिए देखते हैं क्या कह रहा है. In Bijo Emmanuel versus State of Kerala 1986, the Supreme Court held that fundamental duties under Article 51A cannot override fundamental rights under Part 3. And the reason for it is the court held that compelling a person to sing national anthem despite a genuine religious objection violates Article 19 Clause 1A Clause 25(1). Okay, so हमें बताना है out of 4 which are the correct answers. So the correct answer will be option B, यानी कि हमारा assertion भी सही है, reason भी सही है, but reason correctly doesn't explain the assertion, है ना. Reason assertion सही है क्योंकि court explicitly ruled a duty to respect national symbols cannot be turned into a license to punish sincere religious dissent overriding Part 3. Okay, and correct हमारा जो reason था वो भी correct है, अब खुद में ही correct है, but it is not correctly explaining the assertion. Okay, that's the distinction there.
अब क्यों नहीं करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि आर इज ट्रू बट इंडिपेंडेंट होल्डिंग है, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ए इज ट्रू। ए इज ए हमारा जो है वो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का ओवरराइडिंग के बारे में बात कर रहा है वर्सेस, राइट। बट रीजन जो है वो खुद में ही सिर्फ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के बारे में बात कर रहा है। व्हाई इट इज नॉट ओवरराइडिंग पावर, क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा बोला, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, राइट। दैट्स व्हाई करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। आपको हमारे सेशन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, एंड वी डू प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑल्सो ऑन आवर दिस चैनल, सो डू ज्वाइन। Now our next question is, which of the following statements correctly reflect the status of Vande Mataram? पहला है, the Constituent Assembly formally amended the Constitution to make it the national song. And second है, Dr. Rajendra Prasad's 1950 statement gave it equal status with Jana Gana Mana without making it anthem or co-anthem. And the third statement is, the 1937 Working Congress Committee resolved that only the first two secular stanzas are टू बी सॉन्ग एट ऑफिशियल गैदरिंग्स। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स, तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, 2 and 3 स्टेटमेंट। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। गलत इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, the constitution which came into force 2 days after the Rajendra Prasad statements contains no reference, okay। इसमें वंदे मातरम से रिलेटेड कोई भी रेफरेंस नहीं है, इसमें अमेंड नहीं करा गया था किसी भी टाइप से वंदे मातरम से रिलेटेड, ओके। इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट है, क्योंकि 1950 प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट गेव इट ऑनर इक्वल टू एंथम बट नॉट डिड नॉट कन्फर एंथम को एंथम स्टेटस, ओके। इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया बट इट डिड नॉट कन्फर एंथम या को एंथम स्टेटस नहीं दिया, राइट। डू नॉट कंफ्यूज, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपको वंदे मातरम इज अ को एंथम और एंथम एज इन रिगार्ड टू नेशनल एंथम, सो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ओके। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि 1937 में इसको क्या बोलते, बस पहला ही 2 स्टैंजा गाया जाएगा, ऐसा बोला गया था बाय द वर्किंग कांग्रेस कमेटी, ओके। सो अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया इज सेट टू होस्ट ब्रिक्स समिट ऑन September 12, 2026, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज, अ विजिट बाय प्रेसिडेंट शी जिनपिंग फॉर द समिट वुड बी हिज फर्स्ट टू इंडिया इन 7 years। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 है करेक्ट। सो अभी इंडिया रिसेंटली ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा, कब होस्ट करेगा, September 12 को होने वाला है इंडिया में 2026 में, न्यू दिल्ली में, राइट। सो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि शी जिनपिंग इंडिया विजिट पे आ रहे हैं आफ्टर 7 years, राइट। दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट आल्सो बिकम्स करेक्ट। The last meeting between Prime Minister Narendra Modi and Xi Jinping was held in foreign soil, that is Tianjin SCO summit में 2000 अगस्त 2025 में जो SCO summit हुआ था वहीं पे लास्ट मीटअप हुआ था। अब उसके बाद फिर इंडिया में हो रहा है, राइट। ऑन इंडियन सॉइल इट इज आफ्टर 7 years, ओके। सो डू रिमेंबर कि आफ्टर 7 years हो रहा है, ओके। और सीक्वेंस जो रिमेंबर याद करने वाला है, तो कजान में हुआ था, राइट, 2024 में, फिर 25 में तियानजान हुआ SCO, राइट। अब ब्रिक्स समिट हो रहा है 2026 में इंडिया में, है ना। And the 17th BRICS summit was held in which country? तो it was held in Brazil, okay? It was the 17th, और अभी वाला recently 18th है जो इंडिया कर रहा है ना। Okay, so now let's see another question. Consider the following statement on Iran-US standoff. पहला है, the MOU signed in mid-June opened a 60-day talk period aimed at ending the conflict that began in February. Second statement that the 60-day period concluded with a clear sign of compromise on reopening the Strait of Hormuz. And तीसरा है, Mohsin Riazi, Iran's newly appointed Supreme Court National Security Council chief, took a more defiant tone than President Pezeshkian, okay? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कितने हैं तीनों में से। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि MOU जो साइन हुआ था वो 60 डेज का विंडो मिला था दोनों के बीच में, दोनों में आफ्टर फेब्रुअरी स्ट्राइक्स, राइट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि द पीरियड एंडेड विद नो साइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, है ना, इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसमें पर्टिकुलरली रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुआ था, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, ओके।
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैपिंग पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो डू फॉलो वंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैपिंग आप लोग देख लेना अच्छे से, कैसे क्या है, बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, जो ओशनिक गल्फ्स हैं वो क्या है, वहाँ पे कौन से ओशंस या कौन से सीज बिलोंग करते हैं, आसपास कोई लेक है ना? सो कवर ऑल दिस एस्पेक्ट्स फॉर मैपिंग बिकॉज इट इज एन important टॉपिक. So now next one is consider the following statement on the National Horticulture Board new subsidy guidelines. पहला statement है the NHB revised its definition of family for eligibility under the commercial horticulture and cold storage scheme. दूसरा है under the new guideline retired government employees drawing a monthly pension of 10,000 or more are eligible for the subsidy. Correct statement बताना है दोनों में से कितने statement हमारे सही हैं. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है. अब गलत क्यों है चलिए देखते हैं. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि इसमें फैमिली का डेफिनेशन जो है उसको अमेंड करा गया है. नाउ एप्लीकेंट्स स्पाउस फादर मदर एंड चिल्ड्रन फॉर द सेम स्कीम ऑफ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट. ठीक है, right? So what does in a family according to the new definition include? It includes the applicant's spouse, father, mother and children, and only one member of the family can avail this scheme. Okay, according to the new NHB scheme it is about one family one subsidy. Okay, one family one subsidy. ठीक है, सो इसको रिमेंबर रखें, याद रखेंगे कि इट इज अबाउट वन फैमिली वन सब्सिडी एंड ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन अवेल द स्कीम. और सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ड्रॉइंग मोर देन 10,000 और मोर पेंशन दे आर नॉट एलिजिबल. ओके, ये एलिजिबल नहीं है, they have been restricted. That's why the second statements become incorrect. Okay, सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद ऑन ताइवान स्ट्रेट. ओके, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, ताइवान हैज कंट्रोल्ड Kenmen and Matsu since before the outbreak of Chinese Civil War. Second, the Second Taiwan Strait Crisis, 1958, involved a major clash with Chinese Communist forces near this island. And third statement, a formal peace treaty was signed in 1958, ending hostility across the strait. So हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, इसका क्या हो जाएगा आंसर तीनों में से. So the correct answer is option A, that is only first statement is correct. मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, यहाँ पे हमारा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. पहला गलत इसलिए है क्योंकि ताइवान गेन्ड कंट्रोल ओनली इन 1949 आफ्टर द आरओसी गवर्नमेंट फ्लेड टू टाइपी फॉलोइंग सिविल वॉर डिफीट, नॉट बिफोर दी वॉर. ओके, वॉर के बाद में मूव हुआ था, ना कि वॉर के पहले. दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट. एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि 1958 क्राइसिस इज एक्सप्लिसिटली नेम्ड एज मेजर क्लैश नियर दिस आइलैंड्स. और तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे पीस ट्रीटी किसी भी टाइप का साइन नहीं करा गया है. सो इट बिकम्स इनकरेक्ट, राइट. एंड अभी रिसेंटली ताइवानियन प्रेसिडेंट लाइचिंग टीज 2026 जो अभी रिमार्क दिया था इन्होंने कि नेवर इल्डिंग एन इंच. ओके, ही गेव द रिमार्क नेवर इल्डिंग एन इंच, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ऑनगोइंग क्लैश बिटवीन चाइना एंड ताइवान. Okay, and the tensions among between these two countries. So now let's move on to the next one. Consider the following statement on India's new satellite re-entry guidelines. पहला है, in space release India's first guideline on planned satellite re-entry shortly after Vikram 1 successful orbital launch. Second है, the guideline requires the expected casualty risk from re-entry to remain below 1 in 10,000. And third है, any Indian entity undertaking a planned re-entry whether within or outside Indian territory requires in-space authorization. हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं तीनों में से. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. ओके, सो इन स्पेस रिसेंटली रिलीज गाइडलाइन, अभी विक्रम 1 जो प्राइवेटली लॉन्च करा गया था सैटेलाइट, उससे रिगार्डिंग उसके जस्ट बाद विक्रम इन स्पेस बिकेम गाइडलाइंस रिलीज किया. ठीक है, फॉर द री एंट्री ऑफ द सैटेलाइट्स एंड स्काई रूट जो है अभी ये पहला इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट टू गो टू द ऑर्बिट है, विक्रम 1. ओके, सो रिमेंबर द नेम, विक्रम 1 फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट टू गो टू स्पेस. सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेबल रिस्क थ्रेशोल्ड भी मेंशन करा गया है इन द गाइडलाइंस, दैट इज 1 in 10,000. एंड थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ वेदर री एंट्री ऑकर्स विद इन और आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी. सो अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे होगा. ठीक है,
इसीलिए हमारा तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और यहाँ पे एक चीज़ में आप कंफ्यूज मत करना कि प्लान्ड री एंट्री डेलिबरेटली कंट्रोल्ड विथ नेचुरल ऑर्बिटल डीके अनकंट्रोल्ड बर्न अप होता है, ठीक है। प्लान्ड एंट्री मतलब हम डेलिबरेटली उसको कंट्रोल करके री एंट्री करवा रहे हैं, और दूसरा ऑर्बिटल डीके होके नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ऑर्बिटल डीके होके अगर वो री एंट्री ले रहा है तो वो दैट इज अनकंट्रोल्ड बर्न अप, ओके। So do not confuse between the two. And now our next question is, consider the following statement on the Kaziranga mining controversy. हमारा पहला statement है, the Central Empowered Committee (CEC) is a Supreme Court constituted panel monitoring environmental compliance. And the second statement says, the CEC's July 2025 response found that mining related activities near Kaziranga's eco-sensitive zone has ceased entirely. So इसमें correct answer क्या हो जाएगा हमारा? इट इज ऑप्शन ए, दैट इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत है चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी ओवरसीइंग सच कंप्लायंस, ये सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं कंप्लायंस वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि सीईसी फ्लैग्ड कंटिन्यूइंग नॉन कंप्लायंस, ठीक है, वहाँ पे नॉन कंप्लायंस करा जा रहा था काजीरंगा कोर्ट सेंसिटिव जोन जो है वहाँ पे, राइट। दैट्स वाई द थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। और ये कहाँ पे बेसिकली ये जो माइनिंग चल रहा है ये नियर पारका प्रहार रेंज पे, ठीक है। पारका प्रहार रेंज पे ये कंडक्ट करा जा रहा था विदाउट एनी कंप्लायंस, सो ये गलत हो जाता है ना, इस कारण से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एसर्शन रीजनिंग से है, ठीक है। एसर्शन है, ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स इन वाटर स्ट्रेस ड्राई लैंड सच एज प्लांटिंग इकोलिप्टस कैन परपेचुएट द barren लैंड fallacy. सेकंड है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑलवेज रिक्वायर्स मैक्सिमाइजिंग ट्री कवर रिगार्डलेस ऑफ द नेटिव इकोसिस्टम टाइप। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ई इज ट्रू। मतलब एसर्शन हमारा सही है बट रीजन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ओके। एसर्शन बिल्कुल भी सही है, क्योंकि प्लांटिंग वाटर गजलिंग ट्रीज लाइक यूकेलिप्टस इन ड्राई लैंड इकोसिस्टम इज साइटेड एज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ दिस फैलेसी। एंड रीजन हमारा गलत है, क्योंकि ट्रू इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में क्या होता है कि इट इज अबाउट रिस्टोरिंग वॉट एवर इकोसिस्टम नेचुरली ऑकर्स देयर, ठीक है। जो भी वहाँ का नेचुरली इकोसिस्टम है वो ऑकर करता है, वो होता है नेचुरली, तो उसको हम लोग ट्रू इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन बोलते हैं, ना कि जस्ट फोकसिंग ऑन जस्ट वन थिंग, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट मैक्सिमाइजिंग ट्री कवर, है ना। जो वहाँ पे लोकली इकोसिस्टम नेचुरली ऑकर होता है उसको बोलते हैं ट्रू इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ओके। सो डू नॉट कंफ्यूज हियर। And our next question is, consider the following statements. पहला है, Onthapan structures made of clay or mud represents Vamana, an incarnation of Vishnu, and Mahabali, the Asura king. Second है, Onam is predominantly celebrated in West Bengal as a harvest festival. Correct statement बताना है हमें, कौन से statements correct है यहाँ पे। तो इसका आंसर तो आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर ही लिया होगा क्या होगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज, बस पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत है, क्योंकि ओनम जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है? केरलम में करा जाता है, ओके। केरलम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया है ना, और ये एक्ट भी बन चुका है, प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट भी दे दिया है, राइट। सो नाउ ऑफिशियली केरला हैज बिकम केरलम, ओके। सो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो पिरामिड शेप क्ले स्ट्रक्चर होता है दैट रिप्रेजेंट्स वामना एंड महाबली, ओके। सो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सेकंड गलत है, क्योंकि ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरलम नॉट वेस्ट बंगाल, ओके। अब कुछ रीजनल जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं उसको देख लेते हैं, जैसे कि ओनम केरलम में होता है, पोंगल तमिलनाडु में, बिहू आसाम में होता है, राइट। एंड पोइला बोईसाख वेस्ट बंगाल में। सो डू नॉट कंफ्यूज अमंग ऑल ऑफ दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल, राइट। एग्जाम में से मोस्ट प्रोबेबली आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का हार्वेस्ट फेस्टिवल बोल दे दिया जाएगा, स्टेटिंग सम अदर स्टेट्स नेम, राइट। सो दैट वुड बी इनकरेक्ट इन सच सिचुएशंस एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, राइट। सो अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट्स ट्रिपल टेस्ट रूलिंग 2026। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द ट्रिपल टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वाटर what constitute an industry was laid down in the Bangalore Water Supply and Sewage Board case 1978. Second, the 9-judge bench in 2026 completely discarded the triple test for all purpose, including under the new Industrial Relation Code. और हमारा तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, the Industrial Disputes Act 1947 was repealed on November 21, 2025 when the Industrial Relation Code 2020 came into force. So how many statements are correct here? So the answer is option B, only 2 statements are correct. यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है यहाँ, और तीसरा स्टेटमेंट
मतलब पहला और तीसरा सही है, ओके, दूसरा स्टेटमेंट गलत है हमारा, राइट। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने ही ले किया था ये ट्रिपल टेस्ट का, राइट, इन 1978। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि द मेजोरिटी लेफ्ट द टेस्ट स्टैंडिंग फॉर पेंडिंग डिस्प्यूट अंडर द ओल्ड एक्ट, ओके, पुराने एक्ट के ऊपर छोड़ दिया था इसको। एंड द थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाज रिपील्ड ऑन द एग्जैक्ट डेट, जो यहाँ पे डेट मेंशन करा गया है उसी एग्जैक्ट डेट पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को रिपील कर दिया गया था और नया एक्ट फोर्स में आ गया था, है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, जनरेटिव एआई इज इंक्रीजिंगली बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर डिजाइनिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स rather than merely analyzing biological information. Second है, the Stanford experiment discussed involved AI-designed bacteriophages that were able to overcome resistance in certain E. coli strains. And the third statement says the experiment demonstrated that AI can directly manufacture dangerous human viruses without laboratory interventions. Correct statement बताना है क्या हो जाएगा तीनों में से। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि एआई इज मूविंग फ्रॉम एनालाइजिंग बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स प्रपोजिंग डिजाइंस दैट साइंटिस्ट कैन फिजिकली बिल्ड, ओके। एंड सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि एआई डिजाइन अभी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का था उसने एक सडन बैक्टीरियोफेज डिजाइन करने में हेल्प किया है दैट कुड हेल्प इन सर्टन ई कोली स्ट्रेन्स, ओके। एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है ये डिड नॉट डेमोन्स्ट्रेट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेंजरस ह्यूमन वायरसेस, इट ओनली इन्वॉल्व अ रिलेटिव सिंपल बैक्टीरियोफेज इन द, जैसे कि अभी हमने सेकंड स्टेटमेंट में देखा, इट हेल्प बिल्ड अ सर्टन बैक्टीरियोफेज दैट कुड हेल्प रेजिस्टेंस इन सर्टन ई कोली स्ट्रेन, ओके। इसलिए हमारा पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, असर्शन रीजन है। पहला असर्शन है, प्रोरोगेशन एंड एडजॉर्नमेंट सीन डाई आर नॉट द सेम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। एंड रीजन क्या दिया गया, प्रोरोगेशन फॉर्मली टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट whereas adjournment sine die only brings a sitting of the house to an end without formally terminating the session. करेक्ट बताना है क्या हो जाएगा आंसर हमें, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। प्रोरोगेशन एंड एडजॉर्नमेंट सीन डाई ये दोनों डिस्टिंक्ट है, दे आर डिफरेंट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, है ना। प्रोरोगेशन क्या करता है, इट एंड्स द एंटायर सेशन व्हाइल एडजॉर्नमेंट सीन डाई ओनली एंड्स अ सिटिंग, ओके, राइट। एडजॉर्नमेंट सीन डाई जो है ये इट एंड्स द सिटिंग, एंड्स द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, ओके। रिमेंबर दिस डिस्टिंक्शन की एडजॉर्नमेंट सीन डाई क्या करता है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए जो सिटिंग है उसको टर्मिनेट कर देता है, ओके। एंड हमारा रीजन जो है वो भी करेक्ट है क्योंकि प्रोरोगेशन फॉर्मली टर्मिनेट्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। एंड सीनेडाई डज नॉट टर्मिनेट द सेशन, इट ओनली इनडेफिनेट पीरियड के लिए टर्मिनेट कर देता है द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, right. So this was the last question of our session. We have discussed all the 15 MCQs, and do join us on Telegram and WhatsApp channels for more updates. That's all in this session. I hope आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को फॉर मोर सच नोटिफिकेशन फॉर मोर सच सेशंस, ओके।